और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीआरएस एमपीज ने जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करने की मरकज से मांग की। टीआरएस अरकान ने दोनों ऐवानों में इस मामले पर तहरीक इल्तवा पेश की। तहरीक इल्तवा मुस्तरद होने पर अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। राज्यसभा में टीआरएस लीडर के केशव राव और लोकसभा में टीआरएस लीडर ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। అది లేకుండా పెట్టిండ్రు. ఇవాళ నేను ఆయన దగ్గర పెట్టినప్పుడు అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర సస్పెన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటారు, పెట్టినప్పుడు చైర్మన్ గారు రిఫర్ చేశారు. కేశవరావు గారు మీరు జనరల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడచ్చు ఇష్యూ, లేదా మీకు బిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బిళ్ళల్లో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు. కాబట్టి దీనికి స్పెషల్ అడ్జర్న్మెంట్, ఇది అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్తోనే అవుతుంది. నీకు ఎన్నిసార్లు జనరల్ మోషన్ అని మాట్లాడుకుంటూ 75 ఏళ్ళ నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం, కానీ ఇంతవరకు మేము చేసింది ఏమీ లేదు. మేము యాజ్ అ టీఆర్ఎస్ మేము డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే ప్రతి ఇష్యూని ఫోకస్ చేద్దాం. పార్లమెంట్లో మనం ఫోకస్ చేసి విల్ బైకాట్ ది హౌస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ విల్ స్పీక్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ బైకాటింగ్, ఛాన్స్ ఆఫ్ సైలెన్స్ హ్యాస్ ఎ బిగ్ స్టోరీ టు టెల్. అందరం కూడా ఈ యొక్క కుల జనగణకి ఎమ్మట చేపట్టాలని మొత్తం యావత్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా తీర్మానం చేసి ఇక్కడికి పంపడం జరిగింది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా పార్లమెంట్లో డిస్కస్ చేయటం కానీ మేము యొక్క తీర్మానాల్ని పక్కన పెట్టేసేసి ఏమాత్రం కూడా దాన్ని ఆలోచించకపోవడంతో ఇవాళ మేము ఈ విషయంలో నోటీసులు ఇచ్చాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఇందు మూలంగా 2021 సాధారణ జనాభా లెక్కల నిర్వహించేందుకు కులాల వారీగా వెనుకబడిన పౌరుల జనాభా లెక్కలు నిర్వహించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతున్నాం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఇంత క్లియర్గా ఇన్ని రోజుల సంధి మేము వెనకబడ్డప్పుడు కూడా ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మేము 2 హౌస్లు కూడా వాకౌట్ చేసినాం. तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो दिल्ली के एम्स में अपने दांतों का इलाज कराएंगे। केसीआर बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली रवाना हो गए। इनके साथ इनकी अहलिया शोभा रानी भी हैं। यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस लौटने वाले तलबा के साथ इंसाफ होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तलबा को मुल्क में अपनी तालीम मुकम्मल करने की सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बाद 20,000 हिंदुस्तानी तलबा मुल्क वापस आ गए हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा तेलंगाना के तलबा हैं। केसीआर ने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तेलंगाना के तलबा की फीस तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर यूक्रेन से वापस हुए तलबा के मसाइल पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर तलबा की मदद का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन ऐलान से पहले तेलंगाना सीएम को मरकजी हुकूमत से इस मामले पर बात करनी चाहिए थी। You are promising and you are demanding the government of India to take the decision as per your decisions, as per your demand, which is unfortunate. You must have discussed all these things with the government of India well before giving such statement and well before giving such assurance to the students who were pursuing the medicine in Ukraine. Without knowingly, you are politicizing all the issues, including the students of the Ukraine issue, which shows your political intentions every time, and you are working only for politics, not in the interest of students, or not in the interest of farmers, or not in the interest of anybody else. I request the Telangana government to stop all these type of political statements or political issues and go through the papers, go through the discussions, and have consultancy with your own officers and take the proper decision while promising such type of promises to the students or whoever it may be. Thank you. टीआरएस लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने TSEWIDC के सदर नशी की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वजीर लेबर मुल्ला रेड्डी और वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव और दीगर मौजूद थे। वज़रा ने सुधीर
श्रीधर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। श्रीधर रेड्डी ने तालीम को फरोग देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने का अज़्म जाहिर किया और वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। और अब बात पेट्रोल डीजल की। तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज तेलंगाना में पेट्रोल जो है फी लीटर पर 90 पैसे, जबकि लीटर डीजल पर 87 पैसों का इजाफा हुआ है। नई कीमतों के मुताबिक तेलंगाना में लीटर डीजल की कीमत 100 के पार हो गई है। इसी तरह 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे हो गई है। 22 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया है कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 5 या 6 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। और 1 अप्रैल से टोल चार्जेस में इजाफा होने वाला है। रियासत के तमाम कौमी शाहराहों पर मौजूद टोल प्लाजा के चार्जेस में इजाफा होने वाला है। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए गए हैं। 4 व्हीलर कार पर 5 या 10 रुपये का इजाफा होगा। इसी तरह ट्रक पर 15 या 25 रुपये का इजाफा होगा और हेवी व्हीकल्स पर 40 या 50 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। तेलंगाना में जुमला 57 टोल प्लाजा हैं, जिसके जरिए रोजाना 6.6 करोड़ की आमदनी होती है। इसी तरह सालाना 2409 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। टोल फीस में इजाफे के बाद हुकूमत की आमदनी में मजीद इजाफा होगा। हैदराबाद के इलाका पहाड़ी शरीफ में जामा दारुल हुदा का जलसा तक़सीम असनाद व अताए खल्क दस्तारबंदी मुनक़िद किया गया। जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा के सदर हामिद मोहम्मद खान ने शिरकत की। तकरीबन 35 हाफिज और 11 उलमा को असनादात से नवाजा गया। हफ़ाज़ और उलमा को तालीम के बाद भी कलाम पाक का दौर जारी रखने की तलकीन की गई और साथ ही खुद को दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक असरी उलूम से लैस करने का मशवरा दिया गया, ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल नित नए पैदा होने वाले फितनों और मसाइल की रोकथाम से निपटा जा सके। जामे दारुल हुदा के नाम से इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी के तहत ये इदारा चलता है। आज 35 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई और 11 उलमाए किराम को सनद से नवाजा गया और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मेहमान खुसूसी थे आज के जलसे में। और इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान बच्चों का इतना पुख्ता है कि आप कोई भी आयत अगर पढ़ दें तो वहीं से कुरान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ा कमाल है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन बच्चों ने इस पर प्रैक्टिस की है और बहुत ही पुख्ता हुफ़ाज़ किराम यहाँ पर तैयार हुए हैं और उलमा भी। और इसी तरह यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी क़ायम है 10वीं जमात तक, जिसके अंदर दीनी तालीम दी जाती है। अरबी फ़ारसी के अलावा तारीख़ इस्लाम और सर्फ़ नहू और वो सारी चीज़ें दरस निज़ामी की उसके अंदर शामिल हैं। और इस जामिया में 4th से लेकर ग्रेड 10 तक SSC सिलेबस के साथ इस्लामिक स्टडीज़ का करिकुलम जारी है। इसके अलावा यहाँ पर नाज़रा, शोबे हिफ्ज़ और दारुल इफ्ता की फैसिलिटी भी है। तवक्को है कि ये तलबा जब यहाँ से निकलेंगे तो वो समाज की खिदमत अंजाम देंगे, मुल्क व मिल्लत के लिए वो कीमती असासा बनेंगे। तालीम हासिल करना हर फर्द का फर्ज है। समाज में चाइल्ड लेबर के लिए कोई जगह नहीं है। रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने यह बात कही और पिक्सल्स डॉट तंजीम की जानिब से इसर के वर्क साइट इलाके में तालीम हासिल करने वाले बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स में तकसीम किए गए। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि साल 2017 में ऑपरेशन इस्माइल के नाम से एक मुहिम शुरू की गई थी, जो कामयाबी के साथ जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बच्चों के लिए वालिदैन का बेहतरीन तोहफा ज़ेवर तालीम है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर में इजाफा देखा जा सकता है और रियासत के देही इलाकों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दर्ज हरारत में 45 डिग्री तक इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हैदराबाद में आइंदा 5 यौम के दौरान दर्ज हरारत 41 या 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि मौसमी तब्दीली के मनफी असरात के सबब ये सूरत हाल रूनुमा हुई है और आइंदा महीने के दौरान भी गर्मी की लहर जारी रह सकती है। गर्मी की शिद्दत से होने वाले मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आवाम को शदीद धूप में घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने शुमाली और जनूबी अजला के लिए अलर्ट जारी किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।